Student, we are learning Albert Einstein at school के राइटर हैं पैट्रिक प्रिंजल। हम लोग 3 पैराग्राफ को पढ़ लिए थे। 4th पैराग्राफ है उफ exclaimed Albert, and these are the students. Well, you will be a student one day, said Yuri. I doubt it, said Albert glumly. I don't think I'll ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business. I'm sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are. Who gets through? Okay? उफ अफसोस, exclaimed Albert. Albert ने आश्चर्यचकित होकर कहा, and these are the students. यही विद्यार्थी हैं, यही लोग विद्यार्थी हैं। वेल, ठीक है। I'll be student one day, said Yuri. तुम भी एक दिन विद्यार्थी बनोगे, यूरी बोला। You will be a student one day. I doubt it. मुझे शक है भाई साहब, said Albert gloomy. अल्बर्ट ने gloomy यानी उदासी भाव से कहा, I don't think I'll ever pass the exam for the school diploma. मेरे विचार से मैं कभी भी स्कूल का डिप्लोमा प्राप्त नहीं कर सकूँगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. अगली बार जब उसकी एल्सा नामक चचेरी बहन म्यूनिक नामक स्थान पर आई तो उसे भी यही बात बताया। Normally she lived in Berlin where her father had a business. सामान्य रूप से एल्सा बर्लिन में रहा करती थी जहाँ उसके पिता का एक व्यापार हुआ करता था। I'm sure you could learn enough to pass exams. मैं निश्चित हूँ एल्बर्ट की परीक्षा पास करने के लिए तुम काफ़ी कुछ सीख सकते हो। एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सैड. यदि तुम कोशिश करो, एल्बर्ट उसने कहा. I know lots of boys who are much more stupid than you are, who gets through. They say don't have to know anything. You don't have to understand what you are taught. मैं बहुत सारे वैसे लड़के को जानती हूँ, उसने कहा, जो तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन फिर भी वे परीक्षा को पास कर जाते हैं. That's the whole trouble, said Albert. I'm good at learning things by heart. You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't. And yet I always see you with a book under your arms, added Elsa. What is the one you are reading? एल्सा का कहना है कि मैं बहुत सारे वैसे लड़के को जानती हूँ जो तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान नहीं है और पास हो जाते हैं. ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा. जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है वह भी तुम्हें समझना नहीं पड़ेगा, केवल परीक्षा में उसे दोहराना पड़ेगा तुमको. यह सचमुच परेशानी है, एल्बर्ट ने कहा. क्या कह रहा है? दैट्स द होल ट्रबल. यही तो प्रॉब्लम है. चीज़ों को जुबानी याद करने में मैं सक्षम नहीं हूँ. क्या कह रहा है? आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. मैं चीज़ों को जुबानी याद करने में ठीक नहीं हूँ. यू डोंट नीड टू बी गुड एट. एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरेट. ऐसा कह रही है आपको उसमें सक्षम होने की ज़रूरत नहीं है. तोते की तरह भैया बस रट डालो, तुम परीक्षा पास कर दोगे. And yet I always see you with the books under your arms, added Elsa. What is one you are reading? फिर भी देखती हूँ तुम हमेशा अपने पास किताब लिए रखते हो, एल्सा ने कहा. वह कौन सी पुस्तक है जो तुम पढ़ रहे हो? एल्सा पूछ रही है कि वह कौन सी पुस्तक है. What is the one you are reading? वह कौन सी पुस्तक है जो तुम पढ़ रहे हो? एल्बर्ट आइंस्टीन का पैरा 5 है.
A book on geology. Geology, rock and things. Do you learn that? No, we have hardly any scientists at school. Then why are you studying it? Because I like it. Isn't that a good enough reason? Elsa sighed. You are right, of course, Albert, she said, but it won't help with your diploma. Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. That wailing gets on my nerves, she said. There's enough noise in this house with all the kids howling. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. मैंने बताया था कि एल्बर्ट आइंस्टीन को डेटा याद करना अच्छा नहीं लगता था. यहाँ पर लिखा हुआ अ बुक ऑन जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान की पुस्तक. यानी एल्सा जब उसे समझाती है कि तुम्हें पैरट की तरह बातों को लर्न कर लेना है, रट डालना है और उसको एग्जाम में लिख देना और इस तरह से तुम्हारी डिप्लोमा क्लियर हो जाएगी. लेकिन जब एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि यही तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी. शी आस्क्ड टू हिम, यू हैव अ बुक इन योर आर्म, व्हाट काइंड्स ऑफ बुक दिस इज़. तुम्हारे हाथ में किताब है, ये किस प्रकार की किताब है? तो बताते हैं अ बुक ऑन जियोलॉजी, यह भूगर्भ विज्ञान पर किताब है. जियोलॉजी मतलब जियोलॉजी, रॉक एंड थिंग्स का विज्ञान. डू यू लर्न दैट, क्या तुम्हें यह पढ़ाया जाता है, क्या तुम इसे पढ़ते हो? नो वी हैव ऑल हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. नहीं, बताते हैं कि स्कूल में विज्ञान तो बहुत कम ही पढ़ाया जाता है. नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. देन वाई आर यू स्टडिंग इट. तो पूछ रहे हैं एल्सा, अच्छा स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता तो तुम यह पढ़ते काहे के लिए हो? बिकॉज आई लाइक इट. इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न. अरे भाई मैं इसे पसंद करता हूँ, यह मेरा पसंदीदा विषय है इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूँ. यह कारण काफ़ी नहीं है. एल्सा साइड, एल्सा आहें भरती, ठीक ठाक ही है. यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सैड, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा. तुम ठीक कह रहे हो एल्बर्ट, लेकिन ये तुम्हारी डिप्लोमा में हेल्प नहीं करेगा. अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक. यानी साइंस के सिवा यह म्यूजिक भी पसंद करते थे. ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली. ही इज लैंड लेडी आस्क हिम टू स्टॉप. यह अपने घटिया किस्म का जो उनका कमरा था, जिसकी लैंड लेडी थोड़ी रूड स्वभाव की थी, यह वायलिन तब तक बजाते थे जब तक कि वो आकर के रोकती नहीं थी. दैट्स व्हीलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सैड. देयर्स इनफ नॉइज इन द हाउस विद ऑल द किड्स हॉलिंग. आफ्टर एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट द मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग. बेटर टू से नथिंग. यह रोना पीटना मुझे घबराहट देती है, वह बोलती थी. यह तुम्हारी जो बातें हैं, जो वायलिन की आवाज़ है, मुझे अच्छा नहीं लगता. इस घर के भीतर बच्चों की रुलाहट का पहले से अत्यधिक शोर शराबा है और तुम इसी में वायलिन बजा करके डिस्टर्ब करते हो, लैंड लेडी कहती थी. एल्बर्ट यह बताने को लालित हो गया कि अधिकांश समय वह स्वयं उसे चीखने के लिए बाध्य करती है, परंतु उसने निर्णय लिया कि इस विषय में मौन रहना ही श्रेयस्कर होगा, मौन रहना ही अच्छा होगा. बेटर टू से नथिंग मतलब इसके बारे में कुछ कहना ही ज़्यादा अच्छा होगा. ओके स्टूडेंट.